नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया। बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए किस तरीके से यह खजाना खोला है, जरा वो भी देख लीजिए। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात कही गई है और बिहार में ये 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान इस बजट में। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के लिए गया हेड ऑफिस होगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की मंजूरी इसमें शामिल है और बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए ये खजाना इस रूप में खोला है। बजट में निर्मला सीतारमण ने बिहार को सिर्फ सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया और बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान इसमें शामिल है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की मंजूरी, बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मंजूर किया जाना, बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण इसमें शामिल है। बिहार में नया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज बनेंगे। बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए 11,500 करोड़ दिए जाएंगे। बोध गया विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। नालंदा राजगीर में पर्यटन का विकास होगा। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर बनाया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी का विकास किया जाएगा और गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। Industrial corridor. We will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. Purnia Expressway, 2 Buxar Bhagalpur Expressway, 3 Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4 additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pirpenti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Vishnupad Temple Corridor and Mahabodhi Temple Corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple Corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds for Hindus
Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. तो देखिए, कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी क्योंकि सबका फोकस इस बात पर कि आखिर क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। तो क्या सस्ता हुआ उसकी जानकारी दे दें। सबसे पहले स्वास्थ्य सेक्टर की बात कर लेते हैं। कैंसर की दवाओं को सस्ता कर दिया गया है क्योंकि इसमें लगने वाले जो टैक्स थे उसमें कटौती कर दी गई है। मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। और अब जरा देख लीजिए क्या सस्ता आपके लिए हुआ। अब जब आप दुकानों तक जाएंगे तो क्या सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा आपको मोबाइल फोन, जिसका इस्तेमाल आज सबसे ज्यादा किया जाता है। तो अब इस गैजेट को जब आप खरीदने जाएंगे तो वो सस्ता होगा। अब देखिए, मेडिसिन जिसकी जरूरत हर एक आम नागरिक को होती है, ये मेडिसिन जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत उन तमाम जो लोग परेशान होते हैं बीमारियों से, उनके लिए सबसे ज्यादा खर्च इस सेक्टर में होता है। तो उसे सस्ता किया गया है। अब इसके अलावा और क्या सस्ता हुआ है तो ये भी देख लीजिए। अब सोना अगर आप खरीदने जाते हैं, क्योंकि महिलाओं को एक तरीके से ये संपत्ति को सहेजने का भी एक साधन है, उसे वो अपनी एक प्रॉपर्टी के तौर पर देखती हैं, गहनों के तौर पर उसे पहनती हैं, पहचान से जोड़ती हैं, और इसीलिए ये सब कुछ सस्ता हुआ। और क्या कुछ विजय चौधरी कह रहे, जरा सुन लीजिए। 1 घंटे पहले तक चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज जरा उनका मिजाज पूछिए कि अब केंद्र सरकार, बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद तो दें, आभार तो प्रकट करें कि बिहार के विकास के लिए ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार और हमारे जो सभी गठबंधन के दल हैं, ये उनकी सफलता है। और आने वाले वर्षों तक बिहार के लोग इसको याद रखेंगे कि जो केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया है, इससे बिहार के विकास की गति और तेज होगी। और आपने तो देखा है कि लगभग हर क्षेत्र में मदद की बात आई है, हर क्षेत्र में मदद की बात आई है। उद्योग के क्षेत्र में भी, सिंचाई क्षमता के क्षेत्र में भी, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में भी, एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्र में मदद की बात आई है। तो ये बिहार वासी आज शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री के और केंद्र सरकार के, जिन्होंने चिर लंबित मांग को पूरी किया है। और सबसे आश्चर्य और दुखद तो ये था कि अभी 1 घंटे पहले तक विशेष पैकेज और विशेष मदद के मुद्दे पर वही राजनीति कर रहे थे जिनके समय में सबसे पहले इस मांग को खारिज किया था यूपीए सरकार के समय में। आज वही लोग बिहार वासियों को दिखाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, अब उनकी बोलती बंद होगी। तो जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमारी जो पहले से लंबी जो मांग रही है, उन सारी मांगों को आज केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। और नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि भाई बिहार का सर्वांगीण विकास, बिहार का चौमुखी विकास, वो विकास अब इसके साथ और तेजी से होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृत राज भी जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार को लेकर सियासत हमने खूब देखी। बजट पेश होने से पहले ये कहा गया कि भाई गिरिराज सिंह क्या करे, जरा पहले वो सुन लीजिए। किसान, ये हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर, लेकिन बिहार में जिस कहते हैं हम, बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया।
तो गिरिराज सिंह को आपने सुना जो कह रहे हैं ये सुपर पैकेज है जो बिहार को दिया गया है और हम सब अब बिहार का विकास जिस सोच के साथ करना चाहते हैं, जिस गति के साथ करना चाहते हैं, अब वो इस पैकेज के साथ जरूर हो जाएगा। जो सियासत करने वाले लोग हैं कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, उन लोगों के लिए भी ये बजट कहीं ना कहीं एक सबक के तौर पर है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बिहार की जो सोच थी, बिहार की जो उम्मीद थी, बिहार जो चाह रहा था, वो इस बजट से क्या मिल गया? देखिए विभा, कितना मिला नहीं मिला ये एक बहस का विषय है, लेकिन जेडीयू के नेताओं, एनडीए के नेताओं से अगर हम बातचीत करें तो वो बेहद उत्साहित है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। संजीव कुमार है जेडीयू के विधायक और कुमार सर्वजीत है आरजेडी के विधायक, पूर्व मंत्री भी हैं। पहले रिएक्शन ले लेते हैं संजीव जी से। संजीव जी, जो बजट हुआ बिहार के लिए, आप विशेष का बजट और कई तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो बजट मिला इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये स्वागत योग्य है ये बजट फाइनली, लेकिन हम लोगों का जो मांग था विशेष राज्य का दर्जा, ये शुरू से मांग है हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, यहाँ की जनता की रिक्वायरमेंट है। अगर बिहार का कंप्लीट डेवलपमेंट तभी होगा जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। चाहे नीति आयोग का रिपोर्ट हो, हर जगह देखेंगे बिहार पिछड़ा है, और जो बिहार में बेरोजगारी है, जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तभी बेरोजगारी दूर हो सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। लेकिन तो मिला नहीं, वो नहीं मिला, ये तो दुखद है। लेकिन हम लोग खुश हैं, स्वागत योग्य है। कम से कम 26,000 करोड़ का पैकेज मिला, धार्मिक स्थल को डेवलपमेंट के लिए मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए मिला, एक नया ब्रिज पास हुआ, फिर पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये सब स्वागत योग्य है। लेकिन एयरपोर्ट की भी बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज की भी बात हो रही है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है हम लोगों को। अगर कहा जाए तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसका 1/10 पार्ट अभी बिहार को मिला है एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है पूरी तरीके से संतुष्ट, लेकिन पार्शियली सेटिस्फैक्शन है लोगों में यहाँ पे कि हमारे केंद्र में सरकार मिल के इतना दिया। लेकिन हमारी जो उम्मीद है विशेष राज्य की दर्जा, मैं तो ये कहा गया कि भाई क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं करता है बिहार। भाई जब हम लोग पूर्ण बहुमत में हैं, जब हम कश्मीर में धारा 370 हटा सकते हैं क्राइटेरिया को बदल करके, उसी तरह संशोधन करके जो है इसको भी विशेष राज्य का दर्जा के लिए हम लोग बिहार को करें, उसमें बिहार का रिक्वायरमेंट है अभी। लेकिन अब से कुछ देर पहले विजय चौधरी हैं जो पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके, उन्होंने कहा कि जो हमारी आकांक्षाएं थी लगभग पूरा हुआ, और कई सारे ऐसे जो मांग थे हमारे वो पूरे, भले विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। मैं तुम बोला कि मैं पार्शियली सेटिस्फाइड हैं लोग यहाँ पे, लेकिन कंप्लीट सेटिस्फैक्शन लोगों में नहीं है। वो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा जब मिलेगा, और लगभग अगर वो नहीं दिए तो कुछ बड़ा पैकेज दें, करीब 4 लाख करोड़ का पैकेज दें ताकि सारा कार्य हो जाए, तो उससे फिर हमें मिलेगा। बिल्कुल, बेबाद दिलचस्प है। सरजी जी, आपने सुना संजीव जी का, ये पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि हाँ चलिए कुछ मिला बिहार को। आपकी राय क्या है? देखिए, मुझे नड्डा साहब का वो भाषण याद आ रहा है। नड्डा साहब ने क्या कहा था, कितना 1000 करोड़ हम देंगे, उसका 1% भी बिहार को नहीं दिया। सवाल यहाँ पे ये नहीं है स्पेशल पैकेज, सवाल यहाँ ये है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार के किसानों को क्या होगा। हम क्या चाहते थे, क्यों चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा? हम चाहते हैं कि बिहार 95% बिहार में किसान रहते हैं, खेती पे निर्भर हैं। ये केंद्र सरकार ने जो घोषणा किया, क्या किसानों के लिए कोई नदियों को नहर से कनेक्टिविटी की कोई घोषणा हुई? एक मिनट, क्या गांव के अंदर स्कूल अच्छे बन जाए इसकी कोई घोषणा हुई? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तो सरकार, संजीव जी क्या जो सरजीत जी बोल रहे हैं, क्या आप उनके बात से सहमत है? नहीं, पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ मैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गांव में, स्कूलों पे अगर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है और आज भी कर रहे हैं। जितने शिक्षक की बहाली हुआ, क्वालिटी टीचर भी आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बिहार, स्कूल के खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार बहुत आगे चला गया है। तब क्यों सवाल उठा रहे, कह रहे कि बजट में बहुत कुछ नहीं मिला, और खासकर उस बिंदु पर इंगित कर रहे हैं? ये उठा रहे हैं ना। हाँ, वही बोल रहे हैं। हाँ, तो ये अब इनका तो काम है, नहीं उठाएंगे तो कैसे, विपक्ष में है तो उठाएंगे। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है, चूंकि आप गया से आते हैं सरोजी जी, और गया के लिए तो काफी घोषणाएं हो गई हैं। एक सेंटर भी बनेगा, और उसके अलावा बोध गया को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर ये खबर कैसी है? सवाल यहाँ व्यक्तिगत का नहीं है, हम लोग काम करते हैं जनता के लिए।
17 सालों से बोध गया के होटल इंडस्ट्री, फुटपाथ सब मार झेल रहे थे। बेरोजगारी अब वो पुरानी बात है, लेकिन आज जो एक घोषणा हुई, ये तो अब केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा कर दी। आप उसमें ये देख लो कि जो भारत सरकार ने घोषणा किया है, ये सड़कों का किया है, किस चीज का किया है। अगर वो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं तो इसमें इनको ये घोषणा करनी चाहिए थे कि बड़े पैमाने पे विदेशी पर्यटक आएंगे कैसे। जब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित किया जाएगा तो तमाम बातें होगी ना। आप हमारी भावना को समझिए। नहीं, हम आपकी भावना को समझ रहे हैं, लेकिन संजू जी बता दीजिए, बोध गया के साथ नालंदा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल तौर पर विकसित करने की घोषणा की गई है। नहीं, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं तो पहले भी बोला कि धार्मिक स्थल, हमारे जो विरासत है, नालंदा यूनिवर्सिटी, वो सब पे जो कार्य हुआ है, उस पे जो बजट दिया गया है, स्पेशल पैकेज, ये स्वागत योग्य है। और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, बिहार के लोग भाई, कि ये अच्छा है। मैं तो बोला ना कि थोड़ा मिला है, थोड़े और की जरूरत है। मतलब थोड़ा और की जरूरत। डेफिनेटली, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। उसका प्रावधान ही खत्म हो गया। ठीक है, प्रावधान खत्म नहीं हुआ है कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। जब सरकार में आप हैं, आप चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं दे रहे हैं तो मतलब आप नहीं चाह रहे हैं, ये तो एकदम फैक्ट है। चाह लेंगे एनडीए सरकार तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि मिले, और हमारे नेता भी चाहते हैं। सवाल तो यही है आनंद कि जनता भी चाहती है। ये कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि भाई चाह नहीं रही है एनडीए, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विजय चौधरी कहते हैं कि जो हमने सोचा था, जो हमने चाहा था, वो सब कुछ केंद्र की तरफ से मिला है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया, तो हमने ये भी कहा था कि विशेष पैकेज ही मिल जाए। तो अब केंद्र ने हमारी तरफ दिल खोलकर ये मदद बढ़ाई है। हमारे साथ इस वक्त नवल किशोर चौधरी जी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैं यही जानूंगी कि इस पूरे बजट को आपने भी बड़े ध्यान से सुना होगा, देखा होगा। इस बार के इस बजट को आप कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं इसको 60 से 70% दूंगा, उससे कम नहीं है। 70% तो जरूर दूंगा ऑल इंडिया लेवल में, और बिहार के स्तर पर भी मैं इसको 60 से 70% दूंगा। आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं बिहार के संदर्भ में। कोसी रीजन के डेवलपमेंट, जिसमें इरिगेशन, सिंचाई, फ्लड कंट्रोल शामिल है, और नेपाल में हाई डैम की बात है, ये इस पर सरकार ने घोषणा की है कि 11,500 करोड़ खर्च करके इस इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और पूरे एरिया का डेवलपमेंट, कोसी रीजन डेवलपमेंट की बात की है। ये नई योजना है, ये महत्वपूर्ण है। इससे सिंचाई का विकास होगा, पूर्वोत्तर बिहार में फ्लड कंट्रोल होगा, और मैं समझता हूं नेपाल से भी संबंध अच्छे होंगे। दूसरा जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, जो करनी चाहिए, पीर पैंती में एक पावर प्रोजेक्ट की बात की गई है, जिसमें जो मैं सुन पाया 21,400 करोड़ का प्रावधान किया गया। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी ने पावर प्रोजेक्ट की बात की थी और इसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये अनाउंस हुआ है बजट में। पीर पैंती में पावर प्रोजेक्ट 21,400, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो 32,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और इंटायरली न्यू है। जहां तक हाईवेज का सवाल है, अगर बजट एलोकेशन की दृष्टि से देखिएगा तो सिग्निफिकेंट एलोकेशन है, 26,000 एडिशनल की बात की जा रही है। लेकिन ये जो तीनों प्रोजेक्ट बताया जा रहा है एक्सप्रेसवे, किसी न किसी रूप में पहले से चल रहा है। आप देखिएगा कि पटना पूर्णिया जो एक्सप्रेसवे है, मैं नहीं जानता कि अलग से बनेगा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अलग से बनाने की शायद बात है, क्योंकि पटना पूर्णिया कनेक्टेड है। कोसी महासेतु से देखेंगे, मुजफ्फरपुर से पूर्णिया कनेक्टेड। जो पुराना रास्ता है मुजफ्फरपुर से बरौनी होके खगड़िया, वो डबल लेन है, उसको 4 लेन किया जा सकता है। लेकिन अगर इंटायरली न्यू प्रोजेक्ट है तो और अच्छी बात है। फिर भी इस पर प्रावधान किया गया है 26,003 एक्सप्रेसवेज का। जो दूसरा है वो ऑलरेडी है। आप देखिएगा, आमस दरभंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑलरेडी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसको भी इसमें शामिल किया है। लेकिन मैं समझता हूं ये ऑनगोइंग। बक्सर भागलपुर भी किसी न किसी रूप में ऑलरेडी एक्सप्रेस वर्क करा, लेकिन अगर ये 4 लेन को 6 लेन करने की बात है तो और अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर अगर 26,000 करोड़ का इस पर प्रावधान है
तो नवल निश्चित जी, रूप से जो एग्जिस्टिंग बिल्कुल। नेटवर्क नवल है जी, उसको चूंकि एक और सेक्टर था जिस पर पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे और इस बार भी हम चाह रहे थे कि इस पर केंद्र फोकस करे, क्योंकि बिहार के विकास की जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम रखता है। तो पर्यटन के लिहाज से बहुत सारे फैसले इसमें किए गए हैं, उससे आप कैसे देख मानता हूं। देखिए उसमें इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, कम से कम फोकस तो किया। विष्णुपद इंटायरली न्यू होगा कॉरिडोर। जहां तक महाबोधि का है, महाबोधि ऑलरेडी डेवलप्ड है। अब उस कॉरिडोर को शायद बहुत खर्च नहीं करना पड़े उनको, महाबोधि ऑलरेडी इंटरनेशनल सेंटर के रूप में है महाबोधि, लेकिन विष्णुपद एकदम नया प्रोजेक्ट होगा। उस कॉरिडोर को अगर ये बनाते, राज्य का दर्जा कैसे मिलता है? लालू जी भी तो थे, 4 से 5 उनकी सरकार थी बिहार के अंदर और केंद्र में लालू जी मंत्री थे, तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिला पाए? ये वही लोग हैं जो विशेष राज्य के दर्जा को कभी खारिज कर दिए थे, राजद के लोग, और आज विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं। मैं भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार को अपने बजट में हृदय से जगह उन्होंने दिया। तो जीवेश मिश्रा को सुन रहे थे और नवल जी के पास मैं लौटूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रावधान और उम्मीदों की चर्चा जो हम अब तक कर रहे थे कि वो उम्मीदें क्या पूरी हो पाई, और ऐसे में जिस टैक्स स्लैब पर भी हमारी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि जो मीडियम क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, उस वर्ग का सबसे ज्यादा फोकस लोगों का था कि भाई उनके लिए प्रावधान, तो वो प्रावधान भी किया गया, लेकिन क्या ये सेटिस्फैक्टरी है, क्या ये संतोषजनक है? और सम्राट चौधरी क्या करे, जरा वो सुन लेते हैं। कर दिया है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट जी, क्या कहेंगे जो अभी बजट पेश हुआ है, बिहार को क्या मिला? देखिए, बिहार की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी सेक्टर में, चाहे वो इरिगेशन का मामला हो, बिहार बाढ़ त्रस्त रहा, नेपाल से त्रस्त रहा, नेपाल की पानी से त्रस्त रहा, उसके लिए भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने दिया। मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया कि नए मेडिकल कॉलेज, नए एयरपोर्ट और 3-3 एक्सप्रेसवे जो पटना से जोड़ने वाले प्रमुख शहरें हैं, पूर्णिया हो, चाहे वो बोधगया हो, सभी, और बक्सर से लेकर भागलपुर तक पूरा गंगा के बेसिन पर 4 एक्सप्रेसवे बनाने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ कई और योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना का फेज 4 हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 13 लाख घर हमें मिलने हैं, उसके लिए स्वीकृति भारत सरकार दे रही है। तो ये पूरी तरह स्तर से बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए ये गौरव का क्षण है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बिहार के, उन्हें आप सुन रहे थे कि भाई बहुत सारे ऐसी सौगात मिली है जिससे हम बिहार को विकास की तेज रफ्तार पर दौड़ा पाएंगे, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि केंद्र ने हम पर नजर इनायत की। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, क्योंकि ये चर्चा बहुत जरूरी है कि देश का ये बजट, बिहार के बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। एक छोटा अंतराल।